ذہن کے اعتبار سے خیالات کی دنیا میں کرنے لگا. اس سوال کا جواب کہیں نہیں حل ہو رہا ہے. نہ پاکستان میں جواب مل پایا, نہ نیوزی لینڈ میں جواب مل پایا, نہ جورڈان میں جواب مل پایا, نہ امریکہ میں جواب مل پایا, نہ لندن میں جواب مل پایا. دنیا کے کسی ممالک میں اس کا جواب نہ مل سکا. میں پریشان ہو گیا. یا اللہ, تو نے انگور کس کے لیے بنایا, اڑیسہ کس کے لیے بنایا, بہار کس کے لیے بنایا, یو پی کس کے لیے بنایا, ہندوستان کس کے لیے بنایا, سارا جہان کس کے لیے بنایا, زمین و آسمان کس کے لیے بنایا. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, تمہارے لیے, بدر میں ہے کیا تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مفتی فرید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو اب یہ بتاؤ, یہ ساری کائنات کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ مصطفیٰ کے لیے. اس کے لیے پورا مجمع بولے مصطفیٰ کے لیے. حضرات آپ تو ایک دن بولتے ہیں, وہ بھی اپنے ہی محلہ میں. یہ دیکھ رہے ہیں کتنا پتلا دبلا آدمی ہوں, ہندوستان کا 13 اسٹیٹ گھوم گھوم کر آتا ہوں, پھر بھی میری آواز نکل رہی ہے. آپ اتنے خاموش ہو جا رہے. بولو, کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ مصطفیٰ کے لیے. مصطفیٰ کے لیے اللہ نے بنایا. تو اب مجھے ایک چیز بتاؤ, جب آپ آئے مصطفیٰ کے لیے, جاؤ گے مصطفیٰ کے لیے, بیٹھے ہو مصطفیٰ کے لیے, کھاتے ہو مصطفیٰ کے لیے, پیتے ہو مصطفیٰ کے لیے, تو مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی نہیں مناؤ گے تو کس کی؟ نبی کی پیدائش کی خوشی نہ مناؤ گے تو پھر کس کی پیدائش کی خوشی مناؤ گے؟ اچھا آج دیکھو, کس مارک کرو یار. حضرات میں سنجیدہ لہجے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, توجہ. آپ دیکھو آج پورے ہندوستان میں لوگ اپنا سالگرہ مناتے ہیں کہ نہیں بولو؟ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں بولو؟ مناتے ہیں, گھر گھر میں مناتے ہیں. جو پیدائش کی خوشی منانے سے انکار کرتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے. نہیں مناتا ہی بولتے نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ابے کیوں؟ تو کلوا کے بعد تو برتھ ڈے منا رہا ہے, بدھوا کا برتھ ڈے منا رہا ہے, بلوا کا برتھ ڈے منا رہا ہے, الو کا برتھ ڈے منا رہا ہے, منا رہے گی. تو وہاں تمہیں یہ شرک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ بدعت نہیں ہے. اے مسلمانوں, یہ پیغام لے جانا, مناؤ. تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناؤ, اپنی بیٹی کا برتھ ڈے مناؤ, تم اپنی اولاد کا برتھ ڈے مناؤ, ہم رسول پاک کا جنم دن ہے کہ نہیں بولو؟ کیونکہ تمہیں اگر اپنی اولاد سے محبت ہے تو مصطفیٰ سے ہمیں جان سے زیادہ ہے کہ نہیں بولو؟ اور اولاد سے محبت کرنا, توجہ, اولاد سے محبت کرنا یہ ماں باپ کی شان ہے, اور نبی سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ اور ہماری تاریخ تو آج بھی زندہ ہے. مصطفیٰ کے لیے حسین, اصغر بیٹا جاؤ شہید ہو جاؤ, اکبر بیٹا جاؤ شہید ہو جاؤ, قاسم بیٹا جاؤ شہید ہو جاؤ, میرے بھائی عباس چلے جاؤ شہید ہو جاؤ. سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے, میرے ابا کہاں جا رہے ہو, میری پیاس کی قدر کون کرے گا, پانی کون پلائے گا؟ کہا بیٹی تیرے پیاس کی قدر مسلمان کریں گے, بیٹی تیرے سسکیوں کی قدر مسلمان کریں گے, بیٹی تیری ہچکیوں کی قدر مسلمان کریں گے. لیکن بیٹی سنو, ایک طرف حسین کی اولاد ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کا مذہب ہے. اے میرے بچے, جان تو دے سکتا ہوں, ایمان نہیں دے سکتا. حضرات توجہ, تو ظاہر سی بات ہے, تو اگر خوشی مصطفیٰ کی ولادت کی نہ منائے تو کس کو منائے؟ اچھا ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جلوس لے کے گھومنا, کیا لے کے گھومنا, جلوس لے کر, جو جھنڈی لے کر لہرانا, یہ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدعت کسے کہتے ہیں؟
बिदअत का माना क्या है, बिदअत की मीनिंग क्या है, बिदअत का तर्जमा क्या है, बिदअत का मफहूम क्या है, बिदअत का तर्जमा, बिदअत की मीनिंग, बिदअत का माना क्या है। सुनो, बिदअत के उलमा ने अक़साम गिनाए हैं। एक बिदअत वो है जिसे बिदअत हसना कहा जाता है, एक बिदअत वो है जिसे बिदअत सरिया कहा जाता है, एक बिदअत वो है जिसे बिदअत मुबाह। बात समझ में आ रही है? अब आइए उसमें शिर्क को भी ले लें। शिर्क किसे कहते हैं? अब मैं जो कह रहा हूं इसे आप किसी भी डिक्शनरी में देखें। इसमें डिक्शनरी समझते हैं? लुगत, लुगत का माना है डिक्शनरी। किसी की मत सुनो, डिक्शनरी उठाओ, देखो बिदअत का माना क्या है, और डिक्शनरी उठाओ, देखो शिर्क का माना क्या है। डिक्शनरी में शिर्क का माना है साझी। क्या बोलो? शिर्क का माना है साझी। साझी का मतलब क्या है? बराबर। साझी का मतलब क्या है? बराबर। बराबर का मतलब क्या है? हमसर। हमसर का मतलब क्या है? किसी दो जात को एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर देना। तो ये बताओ, बिदअत का माना जब ये हुआ, शिर्क का माना ये हुआ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह माना जाए, खुदा के अलावा ये खुदा तस्वुर किया जाए, अल्लाह के बारगाह में किसी को और अल्लाह माना जाए, उसके मद्दे मुकाबिल किसी को खड़ा कर दिया जाए। तो क्या जुलूस में तुम ये कह के घूमते हो कि अल्लाह के बराबर में हम चल रहे हैं, या नबी को अल्लाह का बराबर मान रहे हैं, या नबी को एक दूसरा खुदा मान रहे हैं? कैसा कहते हो? नहीं कहते। अच्छा, बिदअत का माने क्या है? इस्लाम में वो चीज है जो सरकार के जमाने में ना थी, इस जमाने में पैदा हुई, ये है बिदअत का माना। उसके अक़साम उलमा ने इस अंदाज में निकाला, उसके अक़साम निकाले कि वो चीजें जो सरकार के जमाने में ना थी, उन चीजों को अगर अभी किया जाए तो सरकार की शरीयत पर अगर उसका असर पहुंचता हो तो उसे बिदअत सरिया कहा जाता है। अगर उससे शरीयत पर कोई असर नहीं पहुंचता है बल्कि उससे दीन का भला होता है तो उसे बिदअत हसना कहा जाता है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आओ, कोई हमें बिदअत कहता है तो कह लेने दो, कोई हमें शिर्क का फतवा लगाता है तो लगा लेने दो। हम कहेंगे फतवा लिखने वाले 2 मिनट के लिए अपने कलम को बंद कर ले। अगर फतवा हमें देना है तो देखो तेरा ये फतवा किस किस पे लग रहा है, तेरा ये हुक्म किस किस पे लग रहा है। याद करो वो तारीख हो जब आमना के घर में हमारे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी आने वाले थे, तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील अमीन जाओ 3 झंडियां जन्नत से ले लो। हज़रत जिब्रील के हाथ में 3 झंडियां थे, साथ में 70,000 की फरिश्तों की जमात थे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जिब्रील अमीन पहली झंडी लेकर खाने काबा के छत पे लगा देना, दूसरी झंडी लेकर दूसरी झंडी लेकर बैतुल मुक़द्दस की मीनार पे लगा देना, और तीसरी झंडी ले जाओ आमना के शहर में लगा देना। तो जवाब मिल गया, मसला समझ में आ गया कि जुलूस मोहम्मदी में झंडी लेकर कतार बांध कर चलना ये बिदअत नहीं है, फरिश्तों की सुन्नत है, जिब्रील की सुन्नत है। झंडा बोलो ऊंचे से ऊंचा नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो अगर फतवा लगाना है हमें न लगाओ, उस जिब्रील अमीन को लगाओ जिसने सबसे पहले काबा में झंडा लगाया। अगर लगाना है तो उस जिब्रील को लगाओ जिसने बैतुल मुक़द्दस में झंडा लगाया है। अगर लगाना है तो उस जिब्रील को लगाओ जिसने आमना के सहन में झंडा लगाया है। और यहीं तक नहीं, जब आमना के सहन में झंडा लगाया था जिब्रील ने, और जिब्रील भी तो गुनगुना रहे थे, ये शायर गुनगुना रहे हैं, एहसान भाई गुनगुना रहे हैं, तुम गुनगुना रहे हो, हम गुनगुना रहे हैं। ये गुनगुनाना किसकी सुन्नत है? आमना से पूछो, मैं आमना जब मुस्तफा पैदा हो रहे थे क्या तुमने कुछ सुना? तो आमना जवाब देंगी, हाँ मैंने सुना। क्या सुना? तो जवाब देते हैं, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी, ये आवाज आते थे, सलामे आतिशे जंजीर बाते, तोड़ने वाले सलामे खाक के टूटे हुए थे, छोड़ने वाले सलामे आमना के लाले महबूबे सुहाने, सलामे फख्रे मौजूदात फख्रे नौ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तेरे आने से रौनक आ गई है बज़्म हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गई फिर फजले।
सुभान अल्लाह बहुत। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। जुलूस निकालना ये फरिश्तों की सुन्नत है, और जुलूस में पढ़ना ये भी फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसलिए बिदअत का कोई मसला रहा कोई नहीं। तो जरूरी है मेरे आला हजरत है आपके आला हजरत, क्या बात, पूरी दुनिया के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते। और समझ में आ रही है? ये है मेरे आला हजरत। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कुछ अच्छी बातें एहसान भाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं बहुत जमाने के बाद आपसे मेरी मुलाकात है ना। क्योंकि कभी जब कोई आप में से कोई इनमें से कोई आवाज देता है तो मैं कहीं और रहता हूँ। ये इत्तेफाक है कि 8 तारीख की दावत दी, फिर उन्होंने कहा कि हजरत अगर बारिश होगी तो 11 कर लीजिएगा। मैंने कहा 8 के बाद कोई तारीख खाली नहीं है, 8 के बाद कोई तारीख खाली नहीं है। बारिश हो या तूफान, अगर बुलाना है तो 8 ही को बुलाओ, वरना फिर 1 महीने के बाद कोई तारीख आपको मिल सकती है। तो बहरहाल ये भी मुस्तफा का करम है कि हम और आप हाजिर हो गए, जलसा भी हो रहा है, बारिश भी जलसे को रोक ना सकी। जिक्र मुस्तफा को दुनिया की कोई शय नहीं रोक सकती है, न हवा रोक सकती है, न बारिश न धूप। क्यों? इसलिए कि बारिश भी मुस्तफा का जिक्र कर रही है, धूप भी मुस्तफा का जिक्र कर रही है, हवा भी मुस्तफा का जिक्र कर है कि नहीं? बोलो। और दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जो जिक्र मुस्तफा से खाली है कि नहीं, या जिक्रुल्लाह से खाली हो। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, आई लोगों याद रखना, दुनिया में कोई भी दरख्त उस वक्त तक काटा नहीं जाता जब तक कि अल्लाह और रसूल के जिक्र से गाफिल ना हो जाए। हर शय अल्लाह रसूल का जिक्र कर रही है तो आप नहीं करोगे? अब तो इंसान ना हो, अशरफुल मखलूकात ना हो, इसलिए जरूरी है कि मुस्तफा का जिक्र किया जाए, जुलूस निकाला जाए। बात समझ में आ रही है? इस साल आपने जैसा किया अलग बात है, आने वाले साल एक प्लेटफार्म पे जमा होकर एक जगह से पूरी मेजोरिटी के साथ नबी का जुलूस लेकर चलो, ताकि दुनिया वाले